بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کو جنت بنانے والی 8 باتیں۔ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، مگر بدقسمتی سے بچوں کو ان تبدیلیوں کے بارے میں پہلے سے کچھ بتایا ہی نہیں جاتا۔ جب انہیں یہ سب مشکل اور مختلف حالات پیش آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ شادی انسان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم لوگ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل لاہ عمل دیا ہے۔ یہاں پر کچھ اصول بتائے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے ایک لڑکی اپنی زندگی کو کافی حد تک آسان بنا سکتی ہے۔ پہلے 5 سال شوہر کے نام۔ شادی کے بعد لڑکی کا سب سے پہلے رابطہ اس کے شوہر سے ہوتا ہے۔ شروع کا 1 ماہ تو بہت ہنسی خوشی گزر جاتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی اتنی ہی خوبصورت اور آسان ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ جوں وقت گزرتا جاتا ہے ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، مگر لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وقت شوہر کی بات ماننے کا ہے، نہ کہ اپنی بات منوانے کا۔ آپ کو شوہر جو بھی کہے اس پر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کیجیے، یعنی اس کی بات کا یقین کیجیے۔ شوہر کا کہنا مانیں، چاہے آپ کو آسان لگے یا مشکل۔ اگر میاں بیوی چاہیں تو وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بن سکتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی برداشت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، شوہر کی گھر واپسی پر مسکرا کر استقبال کریں۔ یہ بات تو شرعی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ جب شوہر تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو اسے ایک مکمل گھر کی امنگ ہوتی ہے، جہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی ہو اور خوشبو سے آراستہ بیوی اس کا استقبال کرے تاکہ وہ اپنے سارے دن کی تھکن کو بھلا دے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شوہر کو اپنی پریشانیوں سے آگاہ نہ کریں، بلکہ پہلے اس سے معلوم کر لیں کہ اس کا دن کیسا گزرا۔ اگر تو وہ سارا دن کافی پریشان اور الجھا رہا تو صبر سے کام لیں اور اپنی پریشانیاں نہ بتائیں۔ کامیاب شادی شدہ زندگی میں سب سے زیادہ کردار اس بات کا ہے کہ آپ بات کو کس موقع و محل پر بیان کرتی ہیں۔ جس بیوی کو موقع کی مناسبت سے بات کرنا آ جائے تو ان کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، اور ایسی بیوی اپنے شوہر سے ہر بات طریقے سے منوا لیتی ہے۔ نمبر 3، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں۔ 70% عورتیں سب سے پہلے یہی غلطی کرتی ہیں کہ شوہر کو اس کے ماں باپ سے بدظن کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ انسانی عقل اس بات کو کیسے مان لے کہ وہ ماں باپ جس نے ایک لڑکے کو پڑھایا لکھایا، اس کی تربیت کی، اس کی شادی کروائی، اس کی ہر ضرورت پوری کی، وہ شادی ہوتے ہی انہیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھے۔ کوشش کریں کہ آپ کی ساس اور نندوں سے آپ کی دوستی ہو جائے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ ایک لڑکی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی ناممکن تو نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی ساس اور نندوں کا دل جیت لیا ہے تو اب شوہر کا دل جیتنا مشکل نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، گھریلو سیاست میں نہ پڑیں۔ جو عورت شروع کے 5 سال اپنی سسرال کو دے دیتی ہے اور ان کا کہنا مان کر چلتی ہے تو پھر ساری زندگی اس گھر میں ملکہ بن کر گزارتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کے غلام بن جائیں، میں یہ کہتی ہوں کہ سمجھداری سے اس گھر کی ملکہ بن جائیں۔ نمبر 4، شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کریں۔ عقل مند بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی کمائی پر گزارا کرے اور شوہر کو بار بار پیسوں کا مطالبہ کر کے پریشان نہ کرے۔ آپ کے شوہر کی جو بھی کمائی ہے وہ آپ کا ہی مقدر ہے، کم ہے تو وہ بھی آپ کا مقدر ہے، زیادہ ہے تو بھی آپ کا مقدر ہے۔ اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کو قناعت سمجھیں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ فضول خرچ بیوی شوہر کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ایسے بیوی شوہر کے دل سے بہت جلد اتر جاتی ہے۔ شوہر ایسی بیوی کو پسند کرتا ہے جو قناعت پسند ہو، اچھے برے دنوں میں شوہر کے ساتھ خوشی خوشی گزارا کرے
कोशिश कीजिए कि अपना महीना वार बजट बना लें ताकि आप एक हद में रहते हुए रकम खर्च करें और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। नंबर 5, मैके जाने का वक्त और दिन मुकर्रर कर लें। हमारे माशरे में सास और बहू की लड़ाई की एक अहम वजह बहू का अपने माँ बाप के घर जाना है। सास की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू अपने नए घर में अपना दिल लगाए, उसकी खिदमत करे, और दूसरी तरफ लड़की चाहती है कि अपने माँ बाप को भी वक्त दे। बहू चाहे जितनी भी खिदमत गुजार क्यों न बन जाए, मगर जैसे ही वो मैके जाने का इरादा करती है तो सास के चेहरे पर शिकन पड़ जाती है। यहीं से दिलों में फासले पैदा होते हैं और लड़ाई की इब्तदा होती है। बहू कहती है कि मैं जितनी मर्ज़ी खिदमत कर लूँ, मुझे तो सिला मिलना ही नहीं है। सास कहती है कि बहू को जितना मर्ज़ी प्यार से रखो, ये इस घर को अपना घर समझती ही नहीं है, हर वक्त अपने माँ बाप के घर जाने को तैयार बैठी रहती है। इन सब मसाइल से बचने के लिए बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की मदद से अपने मैके जाने का दिन मुतय्यन कर ले, और ये भी ध्यान रहे कि जो दिन मुकर्रर करे उस दिन उसके ससुराल में मेहमान की आमदोरफ्त कम से कम हो, और अगर उस दिन मेहमान आ जाएं तो अगले दिन चली जाए। कोशिश कीजिए कि बदमज़गी कम से कम पैदा हो, बल्कि पैदा ही ना हो। नंबर 6, शौहर के मूड के मुताबिक मूड बनाएं। शादी के शुरू में मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं समझ पाते, मगर जूं जूं वक्त गुजरता जाता है एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के मूड, मिजाज, आदत और इखलाक को समझ जाते हैं। अगर शौहर गुस्से में हो तो बीवी को चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे, किसी बात की वजाहत भी ना करे, और जब शौहर का गुस्सा ठंडा हो जाए तो बड़ी समझदारी के साथ सारी बात आराम से अपने शौहर को समझा दे कि ये बात इस तरह नहीं, इस तरह हुई थी, क्योंकि आदमी का गुस्सा आग की तरह होता है और औरत की तेज़ी जलती पर तेल का काम करती है। प्यारी बहनों, मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़ात की नफ़ी कर दो, मैं तो ये चाहती हूँ कि अपना घर बचा लो। कितने ही घरों में नज़र दौड़ाओ, कितनी बहनें हैं जो तलाक लेकर बैठी हैं और अब पछता रही हैं कि काश हमने उस वक्त खामोशी इख्तियार की होती जब हमारा शौहर गुस्से में था, तो आज हम भी अपने घरों में आबाद होती। प्यारी बहनों, समझदारी खामोशी में ही है, तभी तो कहते हैं कि खामोशी बेहतरीन इबादत है। नंबर 7, दूसरों से अपना मुआवजा हरगिज़ ना करें। प्यारी बहनों, माजरत के साथ कहूँगी कि औरत की फितरत में बुनियादी तौर पर हसद और माता परस्ती सबसे बढ़कर पाई जाती है, मगर यहाँ हमें ये करना चाहिए कि किसी से हसद नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हर इंसान का अपना नसीब होता है। कहते हैं, नेमत में अपने से कमतर को देखो और मुसीबत में अपने से ज़्यादा वाले को देखो तो शुक्रगुजार बन जाओगे। कभी भी शौहर से ये मत कहिए कि मेरी बहन या फलां पड़ोसन के पास तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर है, पहनने को अच्छे से अच्छे कपड़े और ज़ेवरात हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं। प्यारी बहनों, जो कुछ अल्लाह ने आपको अता किया है उस पर शुक्र अदा करना सीखिए और कनात पसंदी अख्तियार करें, क्योंकि आपके पास कई चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे लोगों के लिए एक ख्वाब हैं, और वो लोग आपको इसी हसरत से देखते हैं जिस हसरत से आप अपने से ऊंचे लोगों को देखती हैं। नेमतों की कदर कीजिए इससे पहले कि वो छिन जाएं। नेमतों का शुक्र अदा करना नेमतों में इजाफे का बास बनता है, और मायूसी नेमतों में कमी का बास बनती है। नंबर 8, अपने मसाइल मैके में बयान ना करें। अक्सर औकात लड़कियों से ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि वो अपने ससुराल की बातें अपने मैके में हर किसी को बताने बैठ जाती हैं। अगर लड़की को अपने ससुराल में कुछ मसाइल का सामना है तो उसे चाहिए कि वो अपनी वालदा को एतमाद में लेकर या फिर अपनी किसी बड़ी बहन को बताए, क्योंकि वो इन हालात से गुज़र चुकी होती हैं और उनकी बेहतर रहनुमाई कर सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ससुराल और मैका
दोनों के मसाइल को अलग रखा जाए, तब ही ज़िंदगी आसान और कामयाब बन सकती है। ससुराल की बातें ना अपने मैके में बताएं, ना किसी मोहल्ले वाली पड़ोसन को और ना ही किसी रिश्तेदार को, क्योंकि अपने घर के मसाइल दूसरों को बताने से आपकी ही इज्जत कम होती है। दूसरे सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, तमाशा ही देखते हैं। आपका मुखलिस कोई भी नहीं होता, आपके मुखलिस सिर्फ आप हैं। प्यारी बहनों, मैं ये नहीं कहती कि शौहर का कसूर नहीं होता, सास का कसूर नहीं होता, नंदों का नहीं होता। मैं मानती हूँ एक औरत को ससुराल में चक्की के दो पाटों के दरमियान पिसना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि खुद को जलील और रुस्वा करो। मैं तो ये चाहती हूँ आप अपने घरों में आबाद रहो। प्यारी बहनों, उन औरतों की तरफ देखो जो अपने घरों में मैके में बैठी हैं, घर उजाड़ कर बैठी हैं। उनसे पूछो भाभियों के ताने कैसे लगते हैं। उनसे पूछो जब लोग आकर उनको ये कहते हैं अगर अच्छी होती तो अपना घर ना बसा लेती, तो अब उनको कैसा महसूस होता है। मेरी प्यारी बहनों, अना का मसला ना बनाओ, अपने घरों को आबाद ही रखो। हर औरत को कुछ ना कुछ मसाइल का सामना ज़रूर करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर एक घर आबाद होता है। मेरी अगली वीडियो शौहर के लिए भी होगी, सास के लिए भी होगी, नंदों के लिए भी होगी। मेरी प्यारी बहनों, जो कुछ मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ जाएं। अपने बच्चों का सोचें, अगर बच्चे नहीं हैं तब भी अपने घर का सोचें। अल्लाह आपको अपने घरों में इतना आबाद करे, इतनी खुशियाँ दे कि आप लोगों को घर के मसाइल ही ना हों। या अल्लाह, सब बेटियों के नसीब इतने अच्छे लिख दे कि उनको कोई मसला ही ना हो, उनको मैके से ज़्यादा ससुराल में ऐशो इशरत दे, उनको अच्छी बेटियां बन के ससुराल में रहने की तौफीक दे और उनके ससुराल वालों को उनके अच्छे हमदर्द बना दे। या अल्लाह, सब बेटियों के दुख ख़त्म कर दे, बे औलादों को औलाद दे दे, जिनके शौहर अच्छे नहीं हैं उनके शौहरों के दिल में मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह, जो अपनी सास और नंदों से दुखी हैं उन सास और नंदों को हदायत दे दे। या अल्लाह, जो सास नंदे अपनी बहुओं से दुखी हैं उन बहुओं को हदायत दे दे। या अल्लाह, हर घर में प्यार, मोहब्बत, सुकून दे दे। आमीन। प्यारी बहनों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।